Hi friends, welcome to online classes created by Sri KP Banda English Medium School. Myself, Mr. Manesar, Standard 4th, Subject EVS Part 2. Today I am going to teach you Shiva Chhatrapati Standard 4. You know that last year you learned only EVS Part 1, means environmental study. But this year EVS subject divided into two parts, part 1 and part 2. Shiva Chhatrapati is a part 2. See content, name of the lesson. First lesson, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, मीन्स शिवाजी से पहले महाराष्ट्र में क्या हालचाल था, ये आज हम देखने वाले हैं. तो चलो, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी. आई रीड one by one paragraph and tell you proper meaning in Hindi or Marathi. Okay, first paragraph. Shivaji Maharaj was a great man. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. It is a happy day for you children. You sing songs and povadas in his honor. You garland his picture and say Shivaji Maharaj ki jai. Who was this Shivaji Maharaj? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? In first paragraph, what they tell, शिवाजी महाराज का जो जन्मदिन है पूरे महाराष्ट्र भर हिंदुस्तान में मनाया जाता है. आपको पता होगा 19 फरवरी को शिव जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से स्कूल में मनाया जाता है, मोहल्ले में मनाया जाता है. सभी शिवाजी का जो पुतला या तो उनका फोटो उसको हार पहनाते हैं. ये आपको तो पता होगा. क्यों पहनाते हैं, किसी को पता है? उस दिन सभी शिवाजी महाराज की जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, ऐसे घोषणाएं दे के उनका गुणगान करते हैं. कौन बताएगा शिवाजी महाराज कौन था? तो शिवाजी महाराज एक ग्रेट लीडर, फ्रीडम फाइटर थे और योद्धा जिन्होंने अपने महाराष्ट्र का निर्माण किया, वो थे शिवाजी महाराज. सेकेंड पैराग्राफ. द टाइम इन विच शिवाजी महाराज lived was that of the medieval period. शिवाजी महाराज कब बन के गए? तो मेडिवल पीरियड में अपने यहाँ महाराष्ट्र में बन के गए. इन दोज डेज monarchs of the rule of kings prevailed everywhere. Many of the kings pursued their own pleasure and enjoyment instead of the welfare of their subject. But even in those days, there were some kings who looked after the welfare of their subject. The Mughal Emperor Akbar in north, Emperor Krishnadeva Raya of Vijayanagar in the south are famous in history of their benevolent rule. Likewise, Shivaji Maharaj also commands great respect even today. तो उस जमाने में, ये जो साल है 1830, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में और नॉर्थ साइड कृष्णदेवराय और साउथ साइड कौन था? अकबर. शिवाजी महाराज इस्टेब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र. स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का जो सरकार रहता है उसको सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं. आवर ओन रूल. फॉर अबाउट 400 years बिफोर शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री. A large portion of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. शिवाजी महाराज से पहले जो पूरा महाराष्ट्र था
वो हमारे कब्जे में नहीं था। कुछ हिस्सा बीजापुर का आदिल शाही इनके कब्जे में था और कुछ हिस्सा निजाम शाही ऑफ अहमदनगर इनके हिस्से में था। तो शिवाजी महाराज ये पूरा सोच के स्वराज्य का निर्माण किया और पूरा हिस्सा अपने हिस्से में ले लिया। Adil Shah of Bijapur. These two sultans had divided Maharashtra among themselves. They were not liberal in their outlook. They oppressed the people over whom they ruled. They were also swam enemies of each other. They constantly fought against each other, with the result that the people suffered and were hushed. The people could not get enough to eat, not could they celebrate their festivals of worship their gods openly and freely। देखो, अहमदनगर का निजाम शाह और बीजापुर का आदिल शाह ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र में कुछ हिस्से में बहुत तकलीफ दे रहे थे लोगों को। तो वहाँ के जो लोग थे उनको ना तो फेस्टिवल मनाने का चांस था, ना तो खेतीबाड़ी करने का चांस था। ये दोनों राजाओं उन पर हमला करके वो पूरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। ये जब शिवाजी महाराज को पता चला तो उनको बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने शिवाजी आगे जाके स्वराज्य की निर्मित की। वो तो हम सब आगे वाले लेसन में देखेंगे। तो इसमें बस महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, शिवाजी आने से पहले महाराष्ट्र में क्या चल रहा था। इन महाराष्ट्र देयर वेर मेनी वतनदार like Deshmukh and Deshpande who owned jagiris. They loved only their jagiri and not their country. शिवाजी से पहले यहाँ पे कुछ जागीरदार थे, देशमुख वतनदार, उनके हाथ में खेत का सारा जाता था। The constant fighting among them brought great misery to the people. There were misrule everywhere. People were tired of these oppressions and were very unhappy. ये पूरे जो माहौल था, इसलिए पूरा यहाँ के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस, ये सब शिवाजी महाराज अपने आँखों से देखा था। He undertook the noble of task establishing Swaraj in Maharashtra which would bring happens to the people। ये जो पूरा तकलीफ आज हमारे वतन के लोग सह रहे, ये उनको अच्छा नहीं लगा। ये सब हटाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। He first vowed to book the वतनदार्स who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. He established the हिंदवी स्वराज। हाँ, उन्होंने खुद निर्मित किसका किया? हिंदवी स्वराज्य की निर्मित की, सभी लोगों के भलाई के लिए, वतन के लिए। He established the हिंदवी स्वराज बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयर प्ले एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। हिंदवी स्वराज्य का मतलब क्या कि सभी को समान हिस्सा मिलना चाहिए, समान हक, हाँ, समान पहचान सभी का होना चाहिए। कोई उच्च नहीं, कोई नीच उनके हिस्से में नहीं आना चाहिए। शिवाजी महाराज मेड टू डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ही ऑनर्ड द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोबल डीड्स ऑफ महाराज। हाँ, शिवाजी महाराज ने जो संत महात्माओं का बहुत कौतुक और वाकई में उनको सभी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 or 400 years बिफोर शिवाजी महाराज, मेनी सेंट्स वेर बॉर्न इन महाराष्ट्र। Their work helped Shivaji Maharaj in his success effort to establish Swaraj, who shall see in the next chapter what these saints। हाँ, 400 बरस पहले अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट बन के गए, संत महात्मा जो शिवाजी के टाइम पे थे, उनको बहुत सम्मान शिवाजी महाराज ने दिया, उनके लिए बहुत कुछ शिवाजी महाराज ने किया है। ये था महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज। इतना ही था। फर्स्ट वन एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स।
आंसर मैंने अंडरलाइन किया है। और सेकंड क्वेश्चन है मैच द पेयर, उसका भी आंसर मैंने एरो के करके दिखाया है। अब बस आपको क्या करना है, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। हाँ, उसका भी आंसर आपको मैं दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन 4, फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का अगर आंसर आपको पता चला तो लिखो, नहीं तो मैं उसका आंसर लिख के दूंगा। ओके, थैंक यू।